ओके वेल, डायस्टोलिक की बात कर रहे थे, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की। इससे पहले हमने सिस्टोलिक की बात की है। डायस्टोलिक में ओके, उसमें सिस्टोलिक में फेलियर ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ द हार्ट हो रही होती है, और डायस्टोलिक में फेलियर ऑफ फिलिंग द वेंट्रिकल और रेजिस्टेंस टू फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल, ये दो चीज़ें हो रही होती हैं। Diastolic failure is widely recognized clinical entity, but cardiac cycle is real diastole. ओके, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में होता क्या है? वालेकुम अस्सलाम कश्मीरा। It is a pathological process characterized by symptoms and signs of congestive heart failure. Okay. Which is caused by increased filling resistance of ventricle and increased intraventricular diastolic pressure. For primary diastolic heart failure, no signs and symptoms of systolic dysfunction is present, but up to 40% of patients suffer from heart failure. और secondary diastolic heart failure, जिसके अंदर diastolic dysfunction is the consequences of primary systolic dysfunction. Main causes and pathomechanism of diastolic heart failure like structural disorders हो सकते हैं, जिसमें increase passive chamber stiffness. दूसरा इंटरमायोकार्डियल प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक मायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो सकती है, एमाइलोइडोसिस हो सकती है, हाइपरट्रॉफी हो सकती है, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है, और एक्स्ट्रा मायोकार्डियल कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है एज वेल। और फंक्शनल डिसऑर्डर्स के अंदर डिक्रीज रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर्स हो सकती है, जिनमें मायोकार्डियल इस्कीमिया अगेन प्रॉब्लम हो सकता है, एडवांस हाइपरट्रॉफी ऑफ वेंट्रिकल हो सकती है, फिलिंग मायोकार्डियम हो सकती है, और हार्ट की वेंट्रिकल्स के अंदर जो सिंक्रोनाइज होती है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहती, ये सिंक्रोनी होना शुरू हो जाती है। Causes and mechanism precipitating in the impaired ventricular relaxation, जिनमें फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस है चैम्बर रिलैक्सेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग वेंट्रिकल कंट्रक्शन होती है, और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल इज नॉट इम्पेयर्ड। इंस्टेड ऑफ दैट फिजियोलॉजिकल चेंजेस चैम्बर्स के अंदर जो रिलैक्सेशन होती है वो ड्यू टू इम्पेयर्ड रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है। इधर डिलेड रिलैक्सेशन होती है या इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन हो रही होती है। डिलेड में रिटार्डेड होना शुरू हो जाती है, और इनकम्प्लीट के अंदर स्लो रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाती है। लाइक ये एक अबनॉर्मल रिलैक्सेशन है और पेरिकार्डियल रेजिस्टेंस है। लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर, जिसमें ए बी और सी दिखाया गया है। ए के अंदर है अबनॉर्मल रिलैक्सेशन है, बी के अंदर पेरिकार्डियल रेजिस्टेंस है, सी के अंदर इंक्रीज चैम्बर रेजिस्टेंस है, स्टिफनेस है, और डी के अंदर चैम्बर डिलेटेशन है। Impaired systolic relaxation, right, compared with condition of prolonged systolic contraction, left-sided. Impaired systolic relaxation but not prolonged contraction can be caused by diastolic failure. Consequences of impaired ventricular relaxation, जिसमें filling of ventricle is more dependent on diastasis and diastole and on the systole of atrias and in the healthy subjects or patients.
Symptoms and signs: exercise intolerance, early sign of diastolic failure, decreased coronary blood flow during diastolic period. Mechanisms involved in the development of ventricle stiffness, like ventricle compliance है, passive property of ventricle, source of compliance like cardiomyocytes and other types of cell in the heart tissue to the stretching. Decreased ventricle compliance is caused by structural abnormalities localized in myocardium and in the extra myocardial tissue. Intramyocardial causes like myocardial fibrosis हो सकता है, hypertrophy of ventricle valve हो सकती है, instead of that restrictive cardiomyopathies हो सकती हैं, और extra myocardial causes जिनमें constrictive pericarditis हो सकता है. Role of myocardial remodeling in the genesis of heart failure, like adaptive remodeling of heart or pathological remodeling of heart. Main causes and mechanism involved in the pathological remodeling of the heart, जिसके अंदर increased amount of size of myocytes like hypertrophy हो गई है due to increased volume या pressure load की वजह से eccentric हो सकती है, concentric hypertrophy हो सकती है. Hormonal stimulation of cardiomyocytes by norepinephrine, angiotensin 2 हो सकता है, और एंडोथेलियम. सेकंड ये होता है कि इंक्रीज परसेंटेज ऑफ नॉन myocytic cell in the myocardium and their influence on the structure and function of the heart. और एंडोथेलियम सेल क्या होती हैं कि एंडोथेलियम माइटोचेनिक एबिलिटी होती है, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ स्मूथ मसल सेल ऑफ दी वेसल्स एंड फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज करवा देती हैं. और जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं दैट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैलोजेंस. सिम्टम एंड साइंस ऑफ हार्ट फेलियर क्या हो सकता है? अगर फॉरवर्ड फेलियर है तो symptoms results from inability of the heart to pump enough blood to the periphery from left heart or to the lungs from right heart. For failure of left heart, muscle weakness हो सकती है, fatigue हो सकती है, dyspepsia हो सकता है, oliguria हो सकता है. और जनरल mechanism like tissue hypoperfusion हो जाती है. Forward failure of right heart क्या हो सकता है? हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द लंग्स हो सकती है, डिसऑर्डर ऑफ गैस एक्सचेंजेस हो सकती हैं. डेफिनेटली अगर हाइपोपरफ्यूजन ऑफ लंग्स है तो दैट विल लीड टू गैस एक्सचेंज और डिसऑर्डर्स. डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द लेफ्ट हार्ट एज वेल. अगर बैकवर्ड फेलियर है, बैकवर्ड फेलियर सिम्टम रिजल्ट्स फ्रॉम इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट to accept the blood coming from periphery and from the lungs. Backward failure of left heart जिसके अंदर इंक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज हो सकता है. जब पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होएगा तो दैट विल लीड टू डिस्निया एंड टैकीपिनिया पल्मोनरी एडिमा होना शुरू हो जाएगा जिसे कार्डियक एस्थमा भी कहा जाता है, और आर्टेरियल हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैपनिया होगा. बैकवर्ड फेलियर ऑफ राइट हार्ट अगर है तो इंक्रीज प्रेशर इन द सिस्टेमिक वीनस सिस्टम दैट विल लीड टू पेरिफेरल एडिमा होना शुरू हो जाएगा, हेपेटोमेगैली होएगी, एसाइटिस होएगी और इंक्रीज नोक्चुरल डायरेसिस. Characteristics of pathological and physiological cardiac hypertrophy. Pathological cardiac hypertrophy as well as physiological cardiac hypertrophy. Stimuli क्या हो सकते हैं? Pressure in the disease setting like hypertension है, aortic coarctation है, volume load है, valvular disease है, cardiomyopathy है, like उसके अंदर viral हो सकती है, toxic metabolic हो सकती है, कोई भी condition हो सकती है. और फिजियोलॉजिकल कार्डियोमायोपैथी जिसमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या क्रोनिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग, वॉल्यूम लोड हो सकता है, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, प्रेशर लोड हो सकता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकता है, वेट लिफ्टिंग हो सकता है. ये फिजियोलॉजिकल कार्डियक हाइपरट्रॉफी लीड कर रहे होते हैं. कार्डियक मॉर्फोलॉजी में पैथोलॉजिकल अगर कार्डियक हाइपरट्रॉफी होगी तो इंक्रीज मायोसाइट्स वॉल्यूम, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सर्कुमेयर्स,
इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस होएगी एंड मायोसाइट नेक्रोसिस एंड अपॉप्टोसिस होना शुरू हो जाएगी। और फिजियोलॉजिकल के अंदर इंक्रीज मायोसाइट्स वॉल्यूम, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सार्कोमेयर्स। फीटल जीन एक्सप्रेशन यूजुअली अनरेगुलेटेड होती है और जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होएगा उसके अंदर नॉर्मली होएगा, रेगुलेटेड होएगी। कार्डियक फंक्शन डिक्रीज ओवर द टाइम, और फिजियोलॉजिकल अगर कार्डियक हाइपरट्रॉफी होएगी तो दैट विल रिमेन नॉर्मल और इनहांस्ड। कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स अगर पैथोलॉजिकल है तो यूजुअली अकर नहीं होते, लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल है तो डेफिनेटली कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स अकर्स। Instead of that, association with heart failure and increased mortality, definitely patient will die after a certain period of time. But if there is a physiological cardiac hypertrophy, patient will not die. मेडिकल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं? पहली भी चीज़ है कि हमें डिक्रीजिंग इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को डिक्रीज करना होता है। अब ये डिक्रीजिंग वेनस रिटर्न डिक्रीज करना होता है, डिक्रीज परीलोड डिक्रीज करना होता है एंड डिक्रीज द वॉल्यूम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग द डायस्टोल। मेडिकेशन इसमें डायबिटिक्स हैं लाइक लॉसिक्स है, ये फोर्सिमाइड कंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा आफ्टर लोड को डिक्रीज करना होता है। आफ्टर लोड में डिक्रीजिंग सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है, पल्मोनरी कंजेशन डिक्रीज होती है और मेडिकेशन में नाइट्रोग्लाइसिन्स है, मॉर्फिन्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दी जा रहे होते हैं। इसके अलावा इंप्रूविंग गैस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजनेशन, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दी जा रही होती है, मॉर्फिन दी जा रही होती है इन सीवियर केसेस। इंटूबेशन एंड वेंटिलेशन आर रिक्वायर्ड। इंप्रूविंग कार्डियक फंक्शन जिसमें इंक्रीज कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी को इंप्रूव किया जाता है विदाउट इंक्रीजिंग कार्डियक ऑक्सीजन कंजप्शन। हीमोडायनामिक्स मॉनिटरिंग जरूरी होता है। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, तो 14 to 18 नॉर्मल होता है। पल्मोनरी वेज प्रेशर बेटा 14 to 18 नॉर्मल होता है, पहले भी हमने एक क्लास में डिस्कस किया था, जो कि 12 to 18 हम कह रहे थे, ये 14 to 18, ये 12 to 18 नॉर्मल होता है। इनोट्रोपिक मेडिकेशन दी जा रही होती हैं लाइक डाइऑक्सिन है। इनोट्रोपिक मेडिकेशन यूज्ड विद हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग लाइक ग्लूटामीन है, इनोडाइलेटर्स हैं, इनोट्रोपिक एंड वेजो डाइलेटर्स, मेलिनोन है। इसके अलावा रिड्यूसिंग एंजाइटी जिसमें सेडेटिव एक्शन ऑफ आईवी मॉर्फिन है, कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को लीड कर रही होती है। डिटरमाइंड है ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेलियर है, एग्रेसिव ड्रग कॉपी, ये सारी चीज़ों को नोट डाउन किया जा रहा होता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर है, राइट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर है, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि राइट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है। लाइक लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर है तो उसमें वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से हो सकता है, ऑर्टिक रिगर्गिटेशन की वजह से हो सकता है। बेटा मार्फिन जो भी पेन हो रहा होता है ना उसको रिलीव करती है, थ्रेशोल्ड को बढ़ा रही होती है। इसके अलावा जब आप पेशेंट को मार्फिन दी जा रही होती है तो लंग्स प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। जो लाइक एमआई हुआ है या हार्ट फेलियर हुआ है तो हार्ट के जो मसल्स होते हैं ना वो नॉर्मली पंप नहीं कर रहे होते, फटीग हो चुके होते हैं, फटीग हो चुकी होती है। तो मार्फिन से उसकी जो बेरिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जो फटीग है वो रिड्यूस हो जाती है। जब फटीग रिड्यूस होएगी अल्टीमेटली
जो राइट साइडेड फेलियर है तो उसमें जो पंपिंग एक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स है, ये एट्रियास हैं, लंग्स की तरफ जो ब्लड जा रहा होता है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, उससे गैस एक्सचेंज इम्प्रूव डेफिनेटली हो जाती है। ओके, इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है, उसकी डिफरेंट काजेज हो सकती हैं, लाइक वॉल्यूम ओवरलोड या प्रेशर ओवरलोड की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि इसमें एट द एंड में ऐड कर दूंगा और स्लाइड्स में। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है तो उसमें दो ही वजह हो सकती हैं। दो वजह में क्या हो सकता है, या तो वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से हो रहा है, या सेकंड प्रेशर ओवरलोड की वजह से है। अगर वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से है तो उसमें पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस आ सकता है, मिट्रल रिगर्गिटेशन हो सकती है, या मिट्रल वॉल स्टेनोसिस हो सकती है, एक्सोटिक रिगर्गिटेशन हो सकती है। फेलियर में ट्रीटमेंट में वार्फिन, ऑक्सीजन और एक्जैक्टली बुशरा बेटा यही दे रहे होते हैं। अगर फेलियर कोई भी होता है ना, इवन के एमआई भी हो गया ना पेशेंट्स को और पेन रिलीव नहीं हो रहा, तो उसमें भी मार्फिन दिया जा रहा होता है। और सप्लीमेंट ऑक्सीजन इसलिए दी जा रही होती है क्योंकि टिश्यू हाइपोपर्फियन हो रही होती है ना, हाइपोपर्फियन से प्रिवेंट करने के लिए। और जो नेट्रोग्लाइसिन दी जा रही होती है, ये वेजोडाइलेटर के तौर पे काम कर रही होती है। अब वेजोडाइलेटर का यहाँ पे क्या रोल है? वेजोडाइलेटर का बेटा इसलिए रोल है क्योंकि अगर हम वेजोडाइलेटर नहीं देंगे तो जो वेनस रिटर्न है वो इंक्रीज हुई होती है, हार्ट की तरफ ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा होता है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए, प्रेशर ओवरलोड को कम करने के लिए निट्रोग्लाइसिन दी जा रही होती है, वेजोडाइलेटर, डायरेक्ट वेजोडाइलेशन हो रही होती है। तो उससे जो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ये जो हार्ट को फोर्सफुली ब्लड को इजेक्ट करना पड़ रहा है, वो कम हो जाता है। ओके हीरा बेटा, मैं शेयर कर दूंगा। ओके, हार्ट फेलियर के अंदर दो चीज़ें और आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, एक राइट साइडेड हार्ट फेलियर है और एक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है मेनली वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से हो रहा होता है या प्रेशर ओवरलोड की वजह से हो रहा होता है, राइट। वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से हो रहा है तो उसके अंदर मीटर वाल रिगर्गिटेशन हो सकती है, एओर्टिक रिगर्गिटेशन हो सकती है, या पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस हो सकता है कि वाल्व आफ्टर बर्थ क्लोज ही नहीं हुआ। सेकंड, प्रेशर ओवरलोड की बात करें तो उसमें भी एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकती है कि जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में फोर्सफुली कंट्रैक्ट करना है, तो अगर एओर्टा आगे स्टेनोसिस हुई हुई है तो उसको फोर्सफुली ब्लड को इंजेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, सिस्टेमिक अगर हाइपरटेंशन है, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है तो भी ब्लड को फोर्सफुली इंजेक्ट करना पड़ेगा, एओर्टिक स्टेनोसिस है तो भी उसको फोर्सफुली ब्लड इंजेक्ट करना पड़ेगा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में मेनली दो वजह से हो रहा होता है, या वॉल्यूम ओवरलोड है या प्रेशर ओवरलोड है। तीसरी कंडीशन होती है कोई मायोकार्डियल डिजीजेज हो सकती हैं, लाइक इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, या अदर दैन इस्कीमिक हार्ट डिजीज कोई और लीडिंग डिजीज हो सकती है, लाइक डायबिटीज हो सकती है, अल्कोहल पेशेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, मायोकार्डाइटिस हो गया है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, या इसके अलावा इडियोपैथिक कोई डिजीज हो सकती है, लाइक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। तो ये सारी कंडीशन मायोकार्डियल डिजीज की वजह से भी लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो रहा होता है। दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल फेलियर। अब जो राइट वेंट्रिकल फेलियर है, राइट वेंट्रिकल फेलियर के अंदर भी वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से या प्रेशर ओवरलोड की वजह से होता है। अब अगर आप सर्कुलेशन की तरफ जाएं तो जो राइट वेंट्रिकल है उसमें जो वॉल्यूम ओवरलोड होएगा वो मेनली या तो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है या ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन की वजह से हो रहा है। अगर प्रेशर ओवरलोड की हम बात करते हैं तो प्रेशर ओवरलोड में इसके अंदर या तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है या पल्मोनरी स्टेनोसिस है। अब राइट साइड आप ये हार्ट अगर देखेंगे तो वो ब्लड सप्लाई कर रही होती है लंग्स को, अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन को मेंटेन कर रही होती है। सेम कंडीशन विद द राइट एंड लेफ्ट फेलियर।
अगर राइट फेलियर होएगा, प्रेशर ओवरलोड लंग्स की तरफ प्रॉब्लम होएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होएगी, ये पल्मोनरी स्टेनोसिस होएगी। अगर लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो प्रेशर ओवरलोड होएगा वो या तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से होगा या एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से होगा। इसके अलावा मायोकार्डियल डिसीज सेम इसमें भी हो सकती हैं, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की वजह से मायोकार्डियल डिसीजेज हो रही होती हैं। इसकी पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो मेनली डिक्रीज कार्डिक आउटपुट की वजह से हो रहा होता है। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट या फॉरवर्ड फेलियर भी उसे कहा जाता है। अब डिक्रीज कार्डिक आउटपुट कैसे होती है कि जब हार्ट की तरफ ब्लड आता है तो हार्ट में उसको फोर्सफुली पंप करना होता है। जब फोर्सफुली पंप नहीं कर सकेगा तो अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट को मेंटेन नहीं करेगा। जब कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी, कार्डिक आउटपुट मेंटेन ना होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है टूवर्ड्स ऑर्गन, टूवर्ड्स टिश्यू, वो नहीं होगी, हाइपोपर्फिया होना शुरू हो जाएगी, इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा होता है बैकवर्ड फेलियर। बैकवर्ड फेलियर में ये होता है कि डेमिंग ऑफ ब्लड होना शुरू हो जाती है। जब इसमें बैकवर्ड फेलियर में क्या होता है कि जो वेनस रिटर्न की फॉर्म में ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है वो ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जा सकता। अब ये जो डीऑक्सीनेटेड है अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब वेन्स के अंदर अकमुलेट होएगा तो अल्टीमेटली ऑर्गन या टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देता है। फॉरवर्ड फेलियर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से। बैकवर्ड फेलियर जिसमें जो वेनस रिटर्न है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड अकमुलेट होना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल के अंदर और ब्लड उसके स्टेसिस होना शुरू हो जाती है, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब हार्ट अनेबल टू पंप ऑल द ब्लड उस टाइम लोकल कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि कार्डिक आउटपुट को मेंटेन किया जा सके। अगर कार्डिक आउटपुट मेंटेन होएगी तो अल्टीमेटली टिश्यू की हाइपोपरफियन से बचा जा सकता है। लेकिन अगर ये सारे मैकेनिज्म्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो पेशेंट की डेथ होती है। इसलिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म जिसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी जैसे ही बढ़ेगी तो उसमें हार्ट का रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कार्डिक मसल्स फोर्सफुली कंट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं जिसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। दूसरी कंडीशन हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। स्पेशली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रॉफी आप ये कह सकते हैं कि मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है प्रेशर ओवरलोड की वजह से, जिसको कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी वो हाइपरट्रॉफी है जिसमें जो मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी डेवलप्स इन द रिस्पांस टू प्रेशर ओवरलोड, उसको कहा जाता है कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। लेकिन अगर वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से हाइपरट्रॉफी हो रही है तो उसको एक्सेंट्रिक कहा जाता है। दो डिफरेंस हैं इसमें, ये कंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी में क्या डिफरेंस है कि जो कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है वो प्रेशर ओवरलोड की वजह से मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होती है, और जो एक्सेंट्रिक होती है वो वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से हो रही होती है। तो उसके साथ वेंट्रिकल की डेलिटेशन होना शुरू हो जाती है। कंपनसेटरी हार्ट फेलियर भी इसको कहा जाता है कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाती हैं। कंपनसेटरी मैकेनिज्म में जिसमें आपका रास सिस्टम है, कैटेकोलामाइंस का रिलीज होना, एडीएच का रिलीज होना, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं। लेकिन ये भी हार्ट फेलियर को वर्स कर रहे होते हैं। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है, हार्ट मेंटेन कर रहा होता है, किडनी मेंटेन कर रहे होती हैं, लेकिन अगर इनमें से भी कोई एक सिस्टम फेल हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक सेवरल टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। सेवरल टाइप्स में क्या क्या आ जाती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक्यूट वर्सेस क्रोनिक हार्ट फेलियर है, लो आउटपुट वर्सेस हाई आउटपुट फेलियर है, फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड फेलियर है, सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक फेलियर है, ये लेफ्ट वर्सेस राइट और बाई वेंट्रिकुलर फेलियर है। ये स्लाइड्स के अंदर मैं मेंशन किया हुआ है कि बाई वेंट्रिकल फेलियर क्या है, लेफ्ट वर्सेस राइट फेलियर क्या है। एक्यूट वर्सेस क्रोनिक फेलियर में क्या होता है कि एक्यूट हार्ट फेलियर होता है, सडनली अकर होता है और आवर्स और डेज के अंदर पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होना शुरू हो एसिम्टोमेटिक से सिम्टोमेटिक होना शुरू हो जाता है। डिफरेंट काजेज हो सकती हैं, लाइक पेशेंट्स को एमआई हुआ था, एमआई एक काज हो सकती है। इसके अलावा टैकियारिदमियाज हो सकते हैं विद हाई हार्ट रेट, अगर हाई हार्ट रेट ज़्यादा है उसके साथ टैकियारिदमियाज होना शुरू हो गए हैं।
एक्यूट हार्ट फेलियर होने के चांसेस हैं। इसके अलावा कोई वॉल फ्रैक्चर हो गया है या इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस है, तो ये अगेन एक्यूट हार्ट फेलियर को लीड कर रहा होता है। क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, क्रोनिक हार्ट फेलियर में जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल आउट होना शुरू हो जाती हैं, अडाप्टेटिव मैकेनिज्म उसको फुलफिल नहीं कर सकते, तो उस टाइम अनाटमिकल अबनॉर्मलिटीज आना शुरू हो जाती हैं, जिसके रिजल्ट में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम कहा जाता है कि ये क्रोनिक हार्ट फेलियर का पेशेंट है। लेफ्ट वर्सेस राइट एंड बाइवेंट्रिकल फेलियर के अंदर जो मेन काजेज होती हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की, उसमें आईएचडी हो सकती है, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो सकती है, मिट्रल और एओर्टिक वाल्व डिजीज हो सकती है, या कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर mainly characterized by reduction in the effective left ventricle output of the for a given pulmonary venous or left arterial pressure। राइट साइडेड अगर हार्ट फेलियर है तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में राइट वेंट्रिकल आउटपुट फॉर एनी गिवन राइट एटीरियल प्रेशर की वजह से डिक्रीज हो गई है, तो उसको कहा जाता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इसकी डिफरेंट काजेज हो सकती हैं, लाइक ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वॉल्व डिजीज हो सकती है, एएसडी हो सकता है, राइट वेंट्रिकल कार्डियोमायोपैथीज हो सकती हैं, क्रोनिक लंग डिजीज हो सकती है, लाइक कोर पल्मोनल हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पल्मोनरी एम्बोलाई या पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। बाइवेंट्रिकल या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर जब बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, राइट और लेफ्ट फेलियर होना शुरू हो जाता है, तो जो पेशेंट्स होते हैं वो मोस्टली राइट हार्ट फेलियर में जा रहे होते हैं ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से राइट हार्ट फेलियर हो रहा होता है। फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड फेलियर, फॉरवर्ड में ये होता है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, परफ्यूजन कम होना शुरू हो जाती है टुवर्ड्स वाइटल ऑर्गन, और इस्कीमिया होना शुरू हो जाता है। लाइक इस्कीमिया ऑफ ब्रेन अगर हो गया है तो मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है, स्केलेटल मसल के इस्कीमिया हो गया तो वीकनेसेस होना शुरू हो जाती है, किडनी के इस्कीमिया हो सकता है, सोडियम और वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, जो हार्ट फेलियर को अगेन वर्स करना शुरू कर देती हैं। और बैकवर्ड फेलियर के अंदर जिसके अंदर जो वेनस रिटर्न है वो लंग कंजेशन काज कर रही होती है, इसके अलावा लीवर की कंजेशन काज कर रही होती है, स्प्लीन की कंजेशन काज कर रही होती है, क्योंकि वेनस रिटर्न हार्ट की तरफ हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर रहा और वो ब्लड वीन्स के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब वीन्स के अंदर अकमुलेट होएगा तो उसके रिजल्ट में लीवर और स्प्लीन की कंजेशन होना शुरू हो जाती है बैकवर्ड फेलियर के अंदर। इसके अलावा सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक फेलियर है। सिस्टोलिक में क्या होता है, कंबाइंड जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फंक्शन है वो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट या डायस्टोल और सिस्टोल मेंटेन नहीं कर सकते। सिस्टोल में ये होता है इम्पेयर्ड मायोकार्डियल कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसको सिस्टोलिक डिसफंक्शन भी कहा जाता है, और डायस्टोल के अंदर वेंट्रिकल रिलैक्सेशन इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाती है, जिसको डायस्टोल डिसफंक्शन कहा जाता है। तो इस तरह सिस्टोलिक फेलियर और डायस्टोलिक फेलियर हो रहा होता है। इसके अलावा लो वर्सेस हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर है। लो आउटपुट फेलियर में लो आउटपुट फेलियर रेस्ट के ऊपर है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज है, ड्यूरिंग एक्सर्शन है, या कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हो गया है, वेलुलर डिजीज हो सकती हैं, रोमेटाइड प्रॉब्लम रोमेटिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, हाइपरटेंसिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी और कार्डियोमायोपैथी डिजीज हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो लो आउटपुट है वो सिस्टेमिक वेसोकंस्ट्रिक्शन काज करवा रही होती है। हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर में क्या होता है कि हाई कार्डियक आउटपुट जिसमें डिफरेंट काजेज हो सकती हैं, लाइक अनीमिया पेशेंट्स हो सकते हैं, बेरीबेरी हो सकती है, पेजियट्स डिजीज ऑफ बोन हो सकती है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकती है। और लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट फॉर गिवन पल्मोनरी वेनस प्रेशर इज कॉल्ड लेफ्ट हार्ट फेलियर। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो क्लिनिकल फीचर्स में क्लिनिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद लेफ्ट वेंट्रिकल
depends on whether the failure is acute or chronic. अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है तो उसमें जो सिम्टम्स होती हैं उसमें डिज़निया होता है, ब्रेथलेसनेस होना शुरू हो जाती है, अल्वर्शन पे हो रही होती है, समटाइम्स रेस्ट पे भी हो रही होती है। डिज़निया ऑन एक्सर्शन होता है, अथोपनिया हो रहा होता है। ओके, इसके अलावा प्रॉक्सिमल और नेचुरल डिस्पनिया हो रहा होता है अल्टीमेटली। साइंस में अगर बात करें तो टैकीकार्डियाज हो रहे होते हैं, कार्डियोमेगैली हो रही होती है, थर्ड हार्ट साउंड आना शुरू हो जाती हैं, क्रेप्टिस होना शुरू हो जाती हैं, क्रोनिक डायलेटेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम अकर्स होना शुरू हो जाती है विद एटीरियल फिब्रिलेशन एज वेल। अगर लेफ्ट साइडेड फेलियर की बात करें तो सिम्पटम में डिस्निया, ऑर्थोपनिया, प्रॉक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया और फटीग होना शुरू हो जाती है, और साइंस में टैकीकार्डिया हो जाता है, S2 स्प्लिट होना शुरू हो जाता है, क्रेपिटस आना शुरू हो जाती हैं लंग्स बेस के अंदर, और कार्डियोमेगैली होती है। ओके, राइट हार्ट फेलियर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक्यूट राइट वेंट्रिकल फेलियर होता है, वैसे पल्मोनरी एम्बोलाई कोई हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। राइट साइडेड एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर मेनली डिस्टेंडेड नेक वेन्स हो सकती हैं, एलिवेटेड ट्यूबुलर वेनस प्रेशर हो सकता है। उसके अलावा कार्डियो और हेपेटोमेगेली हो सकती है, और सडन पेशेंट की डेथ हो सकती है। क्रोनिक हार्ट फेलियर की बात करें तो अगेन इसके अंदर भी डिस्टेंडेड नेक वेन्स होती हैं, हेपेटोमेगेली यूजुअली, लेकिन टेंडरनेस नहीं होती। कार्डियोमेगेली हो सकती है, एडीमा ऑफ डिपेंडेंट पार्ट्स हो सकता है, एडीमा जनरलाइज भी हो सकता है, सीवियर केसेस और एनासार्का दैट इज नोन एज एनासार्का। प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, परिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। इसके अलावा असाइटीज हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी करवाई जा रही होती है। ईसीजी के अंदर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी शो हो रही होती है, मायोकार्डियल इस्कीमिया ऑप्शन शो हो रहा होता है, और इस्कीमिया शो हो रहे होते हैं। एक्सरे चेस्ट, इसमें एलर कंजेशन आ रही होती है, बेड स्विंग्स अपीयरेंस आती है एक्यूट पल्मोनरी एडीमा में। कार्डियोमेगैली अगर है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, प्लूरल इफ्यूजन या कोई नमूनिया एज ए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर के तौर पे लिया जा रहा होता है। इको करवा रहे होते हैं, इकोकार्डियोग्राफी डायग्नोज के लिए, हार्ट फेलियर को डायग्नोज करने के लिए इंपॉर्टेंट टूल है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इंपेयरमेंट ऑफ लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स देखा जा रहा होता है। वेलुलर डिजीज को रूल आउट किया जा रहा होता है, कार्डियोमायोपैथीज को रूल आउट किया जा रहा होता है। इंट्राकार्डियक थ्रोम्बस अगर कोई बना हुआ है, ये इंजेक्शन फ्रैक्शन को देखने के लिए कितने परसेंट है, हार्ट फेलियर डायग्नोज है या नहीं है, किया जा रहा होता है। कार्डियोग्राफी करवाई जा रही होती है। और ट्रीटमेंट में डिपेंडिंग ऑन दी सिवियरिटी या सिचुएशन ऑफ द पेशेंट लाइक डायरेटिक्स दिए जा रहे होते हैं, वेसोडाइलेटर्स दिए जा रहे होते हैं, एस इनहिबिटर्स दिए जा रहे होते हैं, एडिजिटल्स दिए जा रहे होते हैं। इसके अलावा सर्टेन अदर इन्वेस्टिगेशन भी करवाई जा रही होती हैं, लाइक ब्लड सीपी करवाया जा रहा होता है, एलएफटीज करवाई जा रही होती हैं, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाए जा रहे होते हैं, कार्डियक एंजाइम करवाया जा रहे होती हैं मायोकार्डियल इंफेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाया जा रहा होता है कोई थायराइड डिजीज को रूल आउट करने के लिए। मायोकार्डियल बायोप्सी करवाई जा रही होती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है। इसके अलावा बीएनपी करवाया जा रहा होता है, प्लाज्मा एंडोथेलियल 1 कंसंट्रेशन करवाई जा रही होती है, और रेस्टिंग और स्ट्रेस न्यूक्लियर एंजियोग्राफी करवाई जा रही होती है, एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन भी करवा दी जाती है। ओके, मेरा ख्याल है हार्ट फेलियर के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी स्लाइड्स मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, और कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो। बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कैंसर को डिस्कस करते हैं कि कैंसर क्या होती है, कैसे डेवलप होती है, उसको देख लेंगे। ठीक है,
अगर किसी की रह गई है तो लेट मी नो, फिर अटेंडेंस लगवा दे। ओके बेटा, ये आपकी हो गई है अटेंडेंस। बाकी जो रिमेनिंग है, कोई मेरा ख्याल है। जी बेटा, फिजा आपकी हो गई है। फातिमा, नीलम, नीलम की भी हो गई है बेटा। जी अर्का बेटा, आपकी भी हो गई है। ओके बेटा, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास।